Hello students, welcome to YSR Academy. आज के मॉड्यूल में we'll be discussing about the concluding part of the chapter, which is the post the topic of translation. That is, we are discussing the regulation of gene expression. We are also will be talking about the Human Genome Project. Okay, तो इस टॉपिक के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे and then we'll keep a final module separately for the DNA fingerprinting, which is again a very simple topic. So let's begin with the first topic of this module, which is regulation of gene expression. Now students, what do we exactly mean by regulation of gene expression? हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया कि वह ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है. After the translation is complete, once the translation is over, can I say that the final product of the entire central dogma is nothing but the protein or an enzyme, isn't it? So it is also of utmost importance for the cell to ensure that these proteins or these enzymes are also regulated in a very tight conditions and tight way. Why is this so? Because a cell has to ensure that at all given point of time, proper protein, whenever it is required, only then it is synthesized. So students, why do we really understand the regulation? रेगुलेशन समझने का एक ही मकसद है कि हमको ये जानना है कि वो जीन किस तरीके से खुद को एक्सप्रेशन होने से एक तो प्रमोट करता है या फिर रोकता है, इनहिबिट करता है. सो ये चीज समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, we have talking about a very interesting topic of what is called as lac operon. Now, before I understand, we understand the topic of lac operon. For us, regulation of gene expression is more than that. Okay, what do we really understand by gene expression? So when we talk about translation, okay, when we talk about translation, or when we talk about anything like transcription, in either of the cases, be it translation or be it transcription, genes needs to be regulated. Okay, genes को आपको regulate करना पड़ेगा. अब ये regulation कहाँ कहाँ पे हो सकता है? Okay, so there are multiple places where the regulation can occur. Now this regulation can occur the very first at the transcription stage. Okay, transcription stage पे हो सकता है. Second, it can happen at the processing stage. प्रोसेसिंग स्टेज मतलब वही स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, प्रोसेसिंग स्टेज पे ये रेगुलेशन हो सकता है. तीसरा, ड्यूरिंग द फाइनल फॉर्मेशन ऑफ mRNA ट्रांसपोर्ट, उस वक्त में भी यू कैन हैव दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. देन द फोर्थ, यू कैन हैव अ रेगुलेशन एट अ ट्रांसलेशन लेवल. सो ये फोर स्टेजेस हो सकता है जहाँ पे रेगुलेशन काफी टाइटली चल सकता है टू एंश्योर वेदर और नॉट डू यू रियली रिक्वायर द डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन विच इज प्रोटीन और एंजाइम और व्हाटएवर. ओके, सो ये चार अलग अलग स्टेजेस पे रेगुलेशन करते हैं. अभी एक कॉन्सेप्ट जो आपका टेक्स्ट बुक काफी इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करता है is what is called as the lactose. Okay, lactose. Now, as we all know, lactose is a type of a sugar. Okay, lactose is a type of a sugar and it is a disaccharide. What do you mean by disaccharide? Students, it is a complex sugar. Okay, it is a complex sugar. And when we talk about complex sugar, ये complex sugar को मुझे तोड़ना पड़ेगा एक तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ओके, सो इसके अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ सकता है. नाउ इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, व्हाट यूल हैव टू डू इज यूल रिक्वायर, ओके, इस तोड़म ताड़ी के लिए आपको यहाँ पे यूल रिक्वायर सर्टन एंजाइम्स. ओके, कुछ एंजाइम्स आपको यहाँ पे लग सकते हैं. ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स बनाने का काम, ओके, ये एंजाइम्स जो बनाते हैं, these enzymes which are made by for the breakdown of lactose are produced by what is called as the structural genes. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल जीन्स. अभी लैक्टोज को तोड़ने के लिए इन ऑर्डर टू break down lactose, okay, in order to break down lactose we have three enzymes. Okay,
हमारे पास 3 एंजाइम्स है। अभी स्टूडेंट्स, ये कौन से 3 एंजाइम्स है? ये सारे तीनों एंजाइम्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द लैक्टोज, ठीक है। तो ये कौन से? सबसे पहला देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसिडेज, okay, beta galactosidase. Then you have the second enzyme which is called as permease, and then you have the third set of enzyme which is called as transacetylase, okay, transacetylase. ये 3 सेट्स ऑफ एंजाइम्स है। ये तीनों सेट्स ऑफ एंजाइम्स क्या करते हैं यहाँ पे मैं शॉर्ट में एकदम आपको बता देता हूँ what they do. Now say for example we talk about the first beta galactosidase, okay, beta galactosidase. Now beta galactosidase is responsible for breakdown of lactose, okay. It can help in process of breaking down lactose into what? Into ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ओके। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इन दोनों चीजों में ये तोड़ने में हेल्प कर सकता है। सेकेंड एंजाइम इज व्हाट इज कॉल्ड एज परमीज, ओके। व्हाट इज परमीज गोइंग टू डू? परमीज जो है इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ द लैक्टोज इनटू द सेल के अंदर मूवमेंट प्रमोट करता है। And third, you have what is called as transacetylase. Okay, transacetylase. What is transacetylase doing? Transacetylase जो होता है, it can transfer acetyl CoA का CoA, okay, to beta गैलेक्टोसाइड, ओके। जो ट्रांसफेरेंस करता है, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर कर सकता है। सो ये बेसिकली ये 3 अलग अलग एंजाइम्स है जो फाइनली लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प कर सकते हैं। और ये तीनों एंजाइम्स जब अपन डिस्कस करते हैं बच्चों, जब ये अपन तीनों एंजाइम्स डिस्कस करते हैं, तीनों के तीनों एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, ओके, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय set of 3 genes, okay, it is synthesized by the set of 3 genes. और ये जो 3 genes है, ये तीनों genes है, ये तीनों genes collectively when you combine all of these 3 genes together, this collective 3 genes are called as lac operon. It is called as lac operon, ओके। सो अभी अपने को समझना क्या है, हम लोग को ये समझना है कि भाई लैक ओपेरॉन क्या होता है, लैक ओपेरॉन का फंक्शन किस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन वेरी क्विकली टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, okay. Now lac operon for the first time, very first time was discussed and discovered by scientists. There were 2 scientists who did this. The name of the scientist was Jacob and Monod, okay. ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैक ओपेरॉन के बारे में डिस्कशन किया। अभी लैक ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन क्या है? जब लैक तो समझ जाओगे लैक्टोज है। लैक ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन जो होता है ना, ओपेरॉन इट इज सेट ऑफ जीन्स, ओके, सेट ऑफ जीन्स इज ओपेरॉन। और अगर मैंने इसके सामने लैक ओपेरॉन रखा, लैक ओपेरॉन लगा दिया, इसका मतलब क्या रहेगा कि एक ऐसा सेट ऑफ जीन है जो लैक्टोज को तोड़ सकता है, ओके। जब भी आप ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को आप जब लैक्टोज देते हो मीडियम में, ठीक है, मीडियम में प्रोवाइड करेगा तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स शुगर। So if at all bacteria wants to survive, अगर उसको survive करना है, then definitely lactose needs to be broken down. And in order to break down lactose by the bacteria, you will require this lac operon. So हम लोग जो lac operon discuss कर रहे हैं, that has been discussed with respect to bacterial cell. Okay? So operon आपका set of gene है। अभी इस set of gene में बहुत सारे components हैं। Okay? Now we are going to discuss about the components of
lac operon. Okay, we are going to understand the components of lac operon. Now ये lac operon के components क्या क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला I will just give you a idea about the segment. Okay, so मान लो ये एक आपका पूरा structural functional पूरा gene है, इसके अंदर you have certain sets like one here, another, then you have एक सेगमेंट यहाँ पे है, देन एक सेगमेंट यहाँ पे है, देन एक सेगमेंट यहाँ पे। ओके, तीनों को अलग अलग क्यों किया है अभी जस्ट बताता हूँ। दिस इज P I P O, दिस इज योर Z Y A, ठीक है। ये पूरा आपका लैक ओपेरॉन है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पूरा का पूरा आपका लैक ओपेरॉन है। और ये लैक ओपेरॉन का फंक्शन क्या है? लैक ओपेरॉन का फंक्शन क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन लैक्टोज। ओके, सो इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट्स है? सबसे पहला पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रमोटर। Okay, the second part is what is called as regulator. Third part is what is called as operator. The fourth part is called as the inducer. Okay, and the fifth part is what is called as structural genes. ये बच्चों ये चार कंपोनेंट्स आपको पांच कंपोनेंट्स आपको लैक ओपेरॉन में देखने को मिल सकते हैं। अभी लैक ओपेरॉन में ये जो पांचों के पांचों कंपोनेंट्स है, इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंक्शन है, बट वो बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि लैक ओपेरॉन जो होता है, ठीक है, जो लैक ओपेरॉन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। Okay, it is a type of a inducible operon. What does inducible operon mean? Inducible operon मतलब ये कि भाई इसको ऑन करने के लिए you will require what is called as inducer. ओके, अगर आपको इस जीन को ऑन करना है तो फिर आपको इंड्यूसर लगता है, समथिंग विच कैन ट्रिगर, ओके, समथिंग विच कैन स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंड्यूसर। सो यहाँ पे अगर मुझे मान लो हाइपोथेटिकली अगर मुझे ये स्टार्ट करना है, लैक ओपेरॉन स्टार्ट करना है, सो लैक ओपेरॉन को स्टार्ट करने के लिए आई विल रिक्वायर अ इंड्यूसर। Okay, you will require an inducer, and this inducer here in this case is none other than lactose, or also called as allolactose. दोनों का मतलब सेम है, मतलब only when, now pay attention मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, only when lactose is present in the मीडियम, जब भी लैक्टोज आपका मीडियम में प्रेजेंट रहेगा, लैक्टोज जब मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तो आपका लैक ओपेरॉन विल बी ऑन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लैक ओपेरॉन ऑन रहेगा। ओके, और जब लैक ओपेरॉन जो है इट इज एब्सेंट इन द मीडियम, ठीक है, अगर वो एब्सेंट रहेगा तो कहना से लैक ओपेरॉन, अगर आपका लैक्टोज नहीं है, तो कहना इसे द लैक ओपेरॉन वुड बी ऑफ, इजंट इट? लैक ओपेरॉन वुड बी ऑफ। ये दो ही कंडीशन आपको समझना है कि अगर भाई लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक ओपेरॉन को अपन ऑन करेंगे, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो फिर लैक ओपेरॉन को अपन ऑफ कर देंगे। Are you understanding what I'm saying? So this is the basic point of understanding for lac operon. Now we are moving on to the next component कि individually अपन इसके parts जरा समझने का try करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सिंपल चीज हटा देता हूँ रास्ते से, इंड्यूसर। ओके, इंड्यूसर जैसे कि मैंने बताया, इंड्यूसर के बारे में मैंने क्या बोला था? यस, इट इज लैक्टोज विच कैन आइदर
switch on or off the lac operon. Okay, and therefore lac operon is a type of, very good, it's an inducible operon. It's an inducible operon. समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? So this is your inducer, ठीक है. दूसरा component यहाँ पे we can talk about inhibitor or also called as regulator. भाई इनहिबिटर या रेगुलेटर का क्या फंक्शन है? ये जो है इंड्यूसर तो लैक्टोज है. ये जो होता है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई जीन. आई फॉर इनहिबिटर. ओके, क्या खास बात होता है इसका? ये जो आपका आई जीन होता है, इट इज गोइंग टू मेक और इट इज गोइंग टू synthesize the repressor प्रोटीन. ये भाई एक टाइप का प्रोटीन बनाते हैं, उसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन. और यही जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, इट इज गोइंग टू मेक व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रेसर mRNA. रिप्रेसर mRNA बना. रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बना. आई एम सॉरी, ऐसा होगा वो. ठीक है. सो आपका रिप्रेसर प्रोटीन जो बनता है वो बनता है थ्रू रिप्रेसर mRNA. क्या फंक्शन होगा सर इसका? दिस इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिप्रेसर का जो प्रोटीन होता है, ओके, रिप्रेसर का जो प्रोटीन होता है, इट इज गोइंग टू बाइंड द ऑपरेटर. इट इज गोइंग टू बाइंड द ऑपरेटर रीजन. ओके, ऑपरेटर रीजन को बाइंड करेगा एंड स्टॉप द लैक ओपेरॉन. ठीक है. इसको आपको और बेटर तरीके से मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ. फिलहाल के लिए इतना समझिए कि भाई आपको इनहिबिटर है, रेगुलेटर है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है. रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर को बाइंड कर सकता है. ऑपरेटर को बाइंड किया तो पूरा लैक ओपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगा वो. ठीक है. ये सेकेंड कॉम्पोनेंट. थर्ड पार्ट क्या है भाई? थर्ड पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रमोटर. ठीक है. थर्ड पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रमोटर. भाई प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज अ सीक्वेंस of nucleotides. Okay, it's a sequence of a nucleotides which helps in attachment of RNA polymerase. Okay, it helps in attachment of RNA polymerase. आरएनए पॉलीमरेज भैया क्यों चाहिए होगा? ट्रांसक्रिप्शन जरा याद करिए भाई. आपके पास जीन है, आपको प्रोटीन बनाना पड़ेगा ना. तो प्रोटीन बनाने के लिए भाई आपको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा. ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने का साइट ये भाई साहब प्रमोटर प्रोवाइड करता है. सो आई होप इंड्यूसर क्लियर हो गया, रेगुलेटर क्लियर हो गया, प्रमोटर क्लियर हो गया. अभी दूसरा, it is going to the fourth component is what is called as the operator. Okay, the fourth component is what is called as an operator. भाई operator क्या है? operator एक ऐसा हिस्सा है, it is a region where repressor protein binds. ठीक है. ऐसा हिस्सा है जहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है. रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने की वजह से क्या होगा सर? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने की वजह से लैक ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑफ. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया था, यहाँ पे कवर करते. तो ये 4 कंपोनेंट. अभी पांचवा क्या है? पांचवा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द फिफ्थ कंपोनेंट इज नथिंग बट द structural genes.
द फिफ्थ कंपोनेंट इज स्ट्रक्चरल जीन्स। भाई स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स आर दोज जीन्स विच आर गोइंग टू synthesize, okay, synthesize the enzymes, synthesize the enzymes required for breakdown of lactose, breakdown of lactose. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये स्ट्रक्चरल जीन आपके पास तीन है, आपके पास तीन टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स है। सबसे पहला Z gene, okay, then you have Y gene, then you have A gene, ठीक है, ZYA। इसमें का Z जीन जो है, Z जीन, इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसिडेज, okay. Y gene is going to make an enzyme called as permease, and A is going to synthesize what is called as trans acetylase. I think so मैंने आपको इन तीनों का फंक्शन बता दिया है, सिर्फ अभी आपको मैंने लेबलिंग करा दिया। ये तीनों का फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में बता दिया है। देखिए जरा यहाँ पे समझ में आ रहा है? So this is a type of a set of 3 genes which can do the work. ये काम क्या है भाई? ये काम है to break down lactose, and ये enzymes बनेंगे, enzymes बनते हैं just because of the structural genes. So अभी अगर आप arrangement देखेंगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में arrangement पूरा का पूरा, this entire arrangement जो है वो आपको पूरा लैक ओपेरॉन बना के देता है। Are you understanding what I'm trying to say? Now, if at all we take quickly and understand the process of lac operon, जरा समझते हैं अभी इसको, ठीक है? Now, there are two conditions. So सबसे पहले अपन देखेंगे केस वन। केस वन में कुछ इस तरीके से है कि मान के चलेंगे कि जब आपके पास लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज is absent, ओके, मतलब आपके पास लैक्टोज नहीं है, ओके। मान लीजिए कि लैक्टोज सिस्टम में नहीं है, तो कैन आई से लैक्टोज अगर सिस्टम में नहीं है तो फिर लैक ओपेरॉन को चालू करके मतलब नहीं है, ओके। लैक ओपेरॉन को चालू करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज लैक्टोज सिस्टम में है ही नहीं। तो उस केस में सारे जीन्स किस तरीके से रिएक्शन करेंगे जरा देखिए इसको। तो तुम्हारे पास पूरा लैक ओपेरॉन है। अभी मैं एक ही इसको ये कर रहा हूँ। सो यू विल हैव P here, then here I, P for promoter, I for inhibitor or regulator, then again P है, then you have O, okay, then you have Z Y A, ठीक। अभी देखो मैंने तुमको क्या बोला था, ये जो I है, this I is very very important. Why? Because I is a regulator gene. तो ये क्या बनाता है? सबसे पहले ये बनाएगा रिप्रेसर mRNA, ठीक है। रिप्रेसर mRNA कुछ ऐसा दिखता है, मान लीजिए रिप्रेसर mRNA is going to convert into what is called as repressor protein for ease of understanding, मान लीजिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हाइपोथेटिकली ये रिप्रेसर प्रोटीन ऐसा बन गया। अभी लैक्टो सिस्टम में है क्या? ऊपर हेडिंग देखिए, लैक्टो सिस्टम में नहीं है। लैक्टोज अगर सिस्टम में नहीं है ना, तो उस केस में क्या होता है पता है? ये जो रिप्रेसर प्रोटीन रहेगा ना, ये जाके प्रमोटर पे बैठता है, ऑपरेटर पे बैठता है। ऑपरेटर पे बैठने की वजह से हुआ क्या कि उसने ना भाई साइट ब्लॉक कर दिया, अभी साइट ब्लॉक होने की वजह से सर क्या हुआ भाई? आपको पता था कि भाई आरएन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। ना आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाता, उसका रूट ब्लॉक।
अगर उसका रूट ब्लॉक हो गया तो दिस RNA polymerase won't be able to move forward, and if RNA polymerase is not able to move forward, can I say RNA polymerase won't be able to transcribe and translate the genes. स्ट्रक्चरल जीन्स का फंक्शन प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, बट वो तब होगा जब पहला स्टेप तो हो ना। तो पहला स्टेप क्या था? ट्रांसक्रिप्शन था। ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाया बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पाया। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो कैन आई से यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन, ओके, नो ट्रांसक्रिप्शन, एंड बिकॉज देर इज नो ट्रांसक्रिप्शन देर इज नो ट्रांसलेशन। अगर भाई आपके पास ट्रांसलेशन भी नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं है, तो कैन आई से देर इज नो एंजाइम्स, बिकॉज एंजाइम्स तो प्रोटीन से बनते हैं, तो एंजाइम्स नहीं है। और काफ़ी लॉजिकली भी बैठता है बिकॉज थोड़ा दिमाग लगाइए, एंजाइम्स नहीं है मतलब आपका लैक ओपेरॉन क्या रहेगा? वेरी गुड, लैक ओपेरॉन विल बी ऑफ, लैक ओपेरॉन विल बी ऑफ। यही तो चाहिए था, बिकॉज लैक्टोज एब्सेंट है तो मुझे कोई भी सिस्टम को चालू नहीं करना है। ठीक है, इसके ही बाजू में देखो, इसके बाजू में मैं सेकंड केस लेता हूँ, केस टू। केस टू, केस टू के अंदर क्या करेंगे? केस टू के अंदर मान लीजिए सबसे पहला व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। अगर लैक्टोज भाई प्रेजेंट है तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन? अगेन वी विल ड्रॉ से लैक ओपेरॉन बनाया, लैक ओपेरॉन बनाया, ठीक है, देन वी कैन हैव PIPO, ओके, ZYA, ठीक है। इसके अंदर का इसने, ये तो आपका अपना रूल तो जो भी है वो करेगा ही काम। तो इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज रिप्रेसर mRNA, रिप्रेसर mRNA सिंथेसाइज हो गया तो बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन मान लो कुछ इस तरीके से दिख रहा, रिप्रेसर प्रोटीन ऐसा दिखा अभी, बट यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। क्या भाई? यहाँ पे यू हैव जस्ट अ सेकेंड, वी कैन हैव, ओके फाइन, आपके पास यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है ना, सिस्टम में लैक्टोज है, एंड बिकॉज सिस्टम में लैक्टोज है तो फिर कहना इसे लैक ओपेरॉन को मुझे ऑन करना है कि ऑफ करना है? जल्दी बोलो, ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए मेरे को ये उधर बाइंड नहीं, ऑपरेटर को बाइंड नहीं करना चाहिए, तो क्या करता है पता है? लैक्टोज जाके इसको इसको बाइंड करता है, लैक्टोज जाके इसको बाइंड करता है और इसका एक्टिविटी ब्लॉक करता है, इसका एक्टिविटी ब्लॉक करता है। अभी ये जैसे बाइंड हो गया, ये जैसे बाइंड हो गया, ये लैक्टोज है बाय द वे, ओके, ये लैक्टोज है, ये जैसे इसको बाइंड कर दिया, कैन आई से ये भाई यहाँ पे जा नहीं पाएगा। अगर ये भाई यहाँ पे जा नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, तो वहां पे खुला मैदान मिल गया किसको? वेरी गुड, इसको पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को खुला मैदान मिल गया। आरएनए पॉलीमरेज को अगर खुला मैदान मिल गया तो कैन आई से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? there will be transcription and there will be translation, which means these genes, जो structural genes है, इनका कैन आई से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ओके, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो देयर विल बी एंजाइम्स विच विल बी सिंथेसाइज्ड। तो एंजाइम्स भी सिंथेसाइज्ड हो गए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एंजाइम भी सिंथेसाइज हो गए। समझ में आ रहा है क्या बोलो? सो दिस इज व्हाट इट इज कि यहाँ पे एंजाइम सिंथेसाइज हो गए। ये जो एंजाइम्स आएंगे, ये भैया इसको तोड़ देंगे, ठीक है, ये एंजाइम्स उसको लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी दी हुई है, देखिए जरा, सेम एग्जैक्टली सेम चीज है कि भाई रिप्रेसर एमआरएनए है, रिप्रेसर जब लैक्टोज एब्सेंट, इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज एब्सेंट है, रिप्रेसर जाके बाइंड किया, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। रिप्रेसर है, इंड्यूसर है, इसको बाइंड करेगा, इसको इनएक्टिव करेगा, उधर पॉलीमरेज आएगा, पूरा सिंथेसाइज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। इजी इजी स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का अपन एक सेपरेट ही वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं क्या करता हूँ, मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंबाइन कर दूंगा ताकि इट विल बी अ
one shot of a topic. So दोनों topics कैसे छोटे छोटे हैं, तो I think it will be wrapping up in 30 minutes or so. So we'll be able to finish that. After molecular basis is finished, then we can go on to the next chapter. I hope so आपको ये मॉड्यूल में जो भी एक्सप्लेन मैंने किया है वो समझा होगा. अगर बाई चांस आपको कुछ डाउट है, please feel free to comment down in the comment section. We'll be replying you. And also please do consider liking our video, subscribing to our channel. We have crossed a milestone of 1000 subscribers, and with all your support that was possible. So I would highly recommend you to please subscribe to our YouTube channel, share with your friends. We are going to cover the entire syllabus of the Maharashtra State Board for 12th standard, and I'm very sure that after the efforts of and the inputs of different kinds of faculties from different domains of the science subject, I hope you guys are benefiting from it. So therefore I would highly humbly request you to definitely go through our channel, look to our playlist. We have different sets of videos of different kinds of chapters and different subjects. Do explore them, get your doubts cleared, please start studying, and also subscribe to our YouTube channel. That will benefit you, so as the next video when comes in, it will be definitely useful to you. I hope this video is clear. I hope this module is clear. I'll see you in the next class. Till then, take care and stay safe.